Just a minute, बचा लो. All right, so this was a short test to just check कि आप लोगों को मेरी आवाज क्लियरली आ रही है नहीं या नहीं, या फिर आप लोगों को बोर्ड क्लियरली दिख रहा है कि नहीं. So I think can you all quickly just raise your hands and let me know if the voice is clear as well as if the video is clear to all of you or not. I'll share the screen once again. Have a look. Let me know by just raising your hand if in case you're able to see the board clearly, right? So I'll just write here, hello all. Can you all see the board? Is the board clear to everyone? Just raise your hands if yes, quickly. All right, so I can see that some of you have raised your hands. Let's see who all are they. Right. So, as I can see, that Kushal can see the board, Kartikeya can see the board, Mahivesh and Rahul can also see the board, Shrish can see. Okay, I think all of you are able to clearly have a look at the board. Right, right. ठीक है. All right, बच्चों. All right. All right. ठीक है. Right. हाँ ठीक है, आप लोग अपने हैंड डाउन कर सकते हैं वंस अगेन. थैंक यू एवरीवन, थैंक यू. राइट, सो लेट अस डिस्कस दीज आंसर्स. जो भी अभी हमने क्वेरीज क्वेश्चंस देखे, इनके हम एक एक करके आंसर्स डिस्कस करते हैं. राइट, आप लोग अपने हैंड वापस डाउन कर लीजिए. सो वी विल स्टार्ट ऑफ. आई कैन सी योर चैट मैसेजेस. आप लोगों ने यस भेजा है. ओके, ठीक है, लेट्स स्टार्ट. तो अगेन, what is this class meant for? This class is meant for a quick revision of your vectors chapter, plus in order to clear all your queries from this chapter जो भी आपने solve किया है, right, and this test clearance, right? So before we start, जैसे हम हर क्लास में करते हैं, everyone quickly join your hands, close your eyes 3 times. We'll have a deep breath session before we begin. All of you, count 1. Deep breath in and a deep breath out. Count 2. Breathe in and breathe out. Count 3. Breathe in and breathe out. Count 4. Breathe in and breathe out. Let's do it one more time. Take a deep breath in and a deep breath out. With a smile on the face, slowly and steadily, you may open your eyes. हम सभी अपनी आंखें धीरे धीरे मुस्कुराते हुए खोल सकते हैं.
right? All right, so let's start. ओके, सो आप लोगों के लिए जो पहला क्वेश्चन था, दैट क्वेश्चन वाज इन ऑर्डर टू फाइंड आउट, this question was कि find out, you have given in the question, this is question number 80, right? It was given that you have vector A plus vector B whole by A minus B, राइट? एंड देन आप देखोगे यहाँ पर इस तरह से साइन है, इस साइन का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, राइट? इट्स गिवन एज 1। आपको क्या खोजना है? अगर ए एक वेक्टर है और बी दूसरा वेक्टर है कुछ इस तरह से, तो इनके बीच का अगर एंगल थीटा है तो आपको फाइंड करना है कि इनके बीच क्या एंगल है। क्वेश्चन क्लियर है, राइट? सबको कहीं पर भी अगर आपको ऐसा लगता है क्वेश्चन अनक्लियर है तो आप अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हो, ठीक है? राइट, पहले हैंड रेज जरूर करना, जस्ट रेज योर हैंड्स देन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन स्पीक, ठीक है? सो एज आई सेड दैट you in the question you have been given that a plus b ka mod upon a minus b का mod is 1, you have to find out what is the angle between a and b। तो हम इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, राइट? तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन होता है ना वेर यू हैव टू फाइंड द एंगल, तो अपने दिमाग में दो बात याद रखना। क्या आपने एंगल कहाँ कहाँ देखा है? देखो, a प्लस बी के साथ एंगल कब देखा है? जब आप उसका क्या लिखते हो? मॉड लिखते हो। एक प्लस बी का मॉड हमने क्या पढ़ा है? रिकॉल करो। सो we have read that a plus b mod is given as a square plus b square plus 2ab cos theta। चैतन्य, एक बार हम लोग सबसे पहले सारे क्वेश्चंस वन बाय वन डिस्कस करते हैं, राइट? और हर क्वेश्चन के एंड में आई विल गिव अ टाइम जहां पर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है? सो हैव सम पेशेंस, थोड़ा पेशेंस रखो। just let me finish the explanation for one question and then you can raise hand, right? So yeah, let me continue। तो जैसा हमने कहा a plus b का mod is given as a square plus b square plus 2ab cos theta। ठीक उसी तरह से you have a minus b का mod is given as under root of a square plus b square minus 2ab cos theta, करेक्ट? उसके बाद हमको क्या करना है? ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज ओवर हियर, राइट? a प्लस बी का मॉड की वैल्यू इन द न्यूमरेटर, राइट? एंड a माइनस बी की वैल्यू हियर इन द डिनोमिनेटर, करेक्ट? और जब सब्स्टिट्यूट करोगे मेक श्योर कि इस डिनोमिनेटर को RHS पर लेकर जाओ। दिस इज योर राइट हैंड साइड विच इज इक्वल टू 1, राइट? उसके साथ लेकर जाओ, मल्टीप्लाई इट। So what will your equation become? Your equation will become a plus b, right, mod is equal to a minus b mod, correct? अब क्या करना है? राइट डाउन हियर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, और ये शुरुआत में लिखना है, ठीक है? ऐसी छोटी छोटी चीजें जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स एक्सेट्रा, बाद में it will become self understood, ठीक है? तो you will write squaring both sides, then put a square on both sides, that is square this and square this। तो क्या हो जाएगा? अगला स्टेप will be a square plus b square, right, plus 2ab cos theta, whereas on the opposite side you'll have a square plus b square minus 2ab cos theta, करेक्ट? अब हमने ऐसा कैसे किया? सबको क्लियर हुआ, राइट? बिकॉज वी हैव रूट है दोनों तरफ, तो दोनों रूट का स्क्वायर करोगे तो रूट विल गेट कैंसिल्ड, राइट? देन कट a स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, b स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, राइट? बचता क्या है? प्लस 2ab cos थीटा एंड माइनस 2ab cos थीटा ऑन बोथ साइड्स रिस्पेक्टिवली। तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा? ब्रिंग दिस माइनस ओवर हियर, तो कैसा हो जाएगा? प्लस, राइट? 2ab plus 2ab will give you 4ab cos theta, correct? That is equal to 0, correct? Then you have therefore cos theta is equal to 0, correct? और cos theta 0 कब होता है? जब थीटा कैसा होता है? 90 डिग्री, राइट? यहां तक क्लियर है क्या सभी को? एनीवन, एनी क्वेरीज? जस्ट लेट मी नो बच्चा लोग। यहां तक raise your hand and speak if you have anything to ask। yes बच्चा लोग।
ऑल राइट, इन केस देर इज एनी क्वेरी आप लोग बोल सकते हो. क्लियर है सबको? क्वेश्चन क्लियर है राइट? हमने कैसे किया ये वाला क्वेश्चन? इफ देर इज एनीथिंग टू आस्क जस्ट लेट मी नो. Anyone, any query, raise your hand and ask. ठीक है. So I am considering this question is clear for all. लिख लो अपने पास. ठीक है. राइट. चैतन्य, वीरज, अमीश, श्रीश, राहुल, कुशल, महिवेश, कार्तिकेय, anyone, any query, let me know. क्वेश्चन क्लियर? आंसर बन गया सबसे? ठीक है. नोट डाउन कर लो इसको अपने पास. आई विल वेट फॉर अ मिनट. यस, आई विल वेट फॉर अ मिनट. लिख लो. ओके ओके, जिनसे नहीं बना है लिख लो. हाँ चैतन्य बच्चा बोलो. Sir, I can't send you any message. अच्छा, ओके ओके. देन आई थिंक एक काम करो चैतन्य, एक बार लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन कर लो. आई थिंक देन यू विल बी एबल टू. क्लियर है क्या बच्चा? ठीक है. ठीक है. राइट राइट. क्लियर है सभी लोगों को? लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन. राइट. शुड आई रब इट ऑल? रब कर दे. क्लियर? लिख लिया सबने? ओके ठीक है. राइट. सो हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. आपके पास अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 81. राइट. क्वेश्चन नंबर 81 सेज कि आपके पास एक इंसान है हु वॉक्स, अ मैन वॉक्स. एक बहुत अच्छी बात लिखी है. रीड द क्वेश्चन. क्या लिखता है? अ मैन वॉक्स 20 meters, राइट, 20 meters at an angle of 60 degree which is north of east. 60 degree north of east ऐसा कहा गया है. करेक्ट? तो 60 degree north of east क्या होता है? What is 60 degree north of east? Have a look here. अगर हमारे पास देखो, मैं इस तरह से 4 कार्डिनल डायरेक्शंस को ड्रॉ करता हूं. So we have, let us say these are the 4 directions, right? Let this one be north. Here we have north. This is east, west and south. ठीक है. अब क्या लिखता है कि इंसान, सपोज अगर वो यहां पर था इनिशियल, द मैन इज हियर. क्या लिखता है? ही स्टार्ट्स वॉकिंग up to a distance of 20 meters which is at 60 degree north of east. मतलब ईस्ट से 60 डिग्री नॉर्थ की तरफ. राइट? क्लियर हो रहा है क्या बच्चा लोग? ये बात जो मैंने कहा 60 डिग्री टू द नॉर्थ ऑफ ईस्ट. राइट? अब 60 डिग्री विल मीन यहां से एक एंगल इस तरह से आप ऐसे लाइन बनाओगे, ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाट इज द पाथ अलोंग विच द मैन वॉक्स. कुछ ऐसा. हैव अ लुक. देख रहे, ये स्क्रीन दिख रही है सभी लोगों को बच्चा लोग? 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, इसका मतलब दिस एंगल इज 60 डिग्री. मतलब ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 60 डिग्री. राइट? ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 60 डिग्री. क्लियर है बच्चा लोग ये बात सबको? तो अब क्या है, इस लाइन की लेंथ क्या दी हुई है? इस लाइन की लेंथ दी हुई है हम लोगों को 20 मीटर्स. करेक्ट? 20 मीटर्स. अब क्या करोगे? लिखता है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है. क्वेश्चन पूछ रहा है जब वो, सपोज ये ओरिजिन है, ठीक है, यहां से वॉक करना शुरू करता है एंड सपोज दिस पॉइंट इज ए पॉइंट तक पहुंच जाता है. तो क्वेश्चन पूछता है आपसे हाउ फार टुवर्ड्स द ईस्ट द मैन हैज मूव्ड. मतलब ईस्ट के अलोंग इंसान कितना चल चुका है. आई विल रिपीट द क्वेश्चन. हाउ फार अलोंग द ईस्ट द मैन हैज मूव्ड. राइट? सो इसका मतलब जैसे जैसे वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, सो
इफ द मैन इज मूविंग फ्रॉम ओ, यहां से चलता गया चलता गया चलता गया, ए तक पहुंच गया, ऐसा करते वक्त वो जरूर थोड़ा सा राइट में भी खिसक रहा है, राइट? तो हमसे पूछा जा रहा है कि वो राइट में कितना मूव हो चुका है। यानी कि अगर मैं यहां से ऐसे एक लाइन ड्रॉप करूं कुछ इस तरह से, सो हाउ मच इज दिस डिस्टेंस, ये हमसे पूछा जा रहा है, राइट? एंड इफ यू फाइंड आउट, हमने क्या सीखा है, अगर x के अलोंग कंपोनेंट खोजना है और हमें ये वाला डिस्टेंस पता होता है कि एक्चुअली ये वाली वैल्यू कितनी है, और x एक्सिस के अलोंग हमें डिस्टेंस खोजना होता है, तो कैसे निकालते हैं हम, याद करो। इफ दिस, यू नो, इफ दिस इज r, राइट, और हमारे पास ये थीटा है, सो इस वाले साइड यानी कि x कंपोनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, हमने पढ़ी है r cos थीटा, राइट? तो ये क्या हो जाएगा, 20 into cos of 60 डिग्री, दैट इज इक्वल टू cos into 20 into cos 60 is equal to half। तो क्या हो जाएगा आंसर, 10 meters। इसका मतलब what does this imply? अब सपोज अगर ये पॉइंट B है, राइट, जहां पर हमने प्रोजेक्शन लिया है, तो हम कह सकते हैं कि जब वो इंसान O से, पॉइंट O से A तक पहुंचा, इस दौरान वो अपने ईस्ट की तरफ कितना मूव हो गया, बाय 10 मीटर्स। क्लियर हो रहा है? इस ये मीनिंग होता है हाउ मच अलोंग द ईस्ट हैज द मैन मूव्ड। क्लियर है बच्चा लोग आपको ये बात, एवरीवन? राइट, r cos 60 कैसे निकाला, सबको समझ में आया, राइट? एनीवन, एनी क्वेरीज, आप पूछ लो। एनी क्वेरीज, जस्ट रेज योर हैंड, लेट मी नो। If there is anybody who wants to ask anything, just let me know. क्लियर है ना सबको? ठीक है, चैतन्य, कुशल, महेश, राहुल, एवरीवन, श्रीश, वीरज, कार्तिकेय, अमीश, एवरीवन क्लियर है, राइट? ठीक है, राइट। आप लोग चाहो तो बार बार आप यस सर, नो सर लिखने की जरूरत नहीं है। अगर डाउट होता है तो जस्ट रेज योर हैंड, तो आई विल टेक दैट डाउट, राइट? ठीक है, सो वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन, इफ दिस इज क्लियर। ठीक है, ऑल राइट। अगला क्वेश्चन आपके पास, अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 में पूछा गया है दैट व्हाट इज द एंगल बिटवीन, व्हाट इज द एंगल बिटवीन P plus Q और there is one more and P cross Q, P cross Q, इनके बीच में हमको एंगल पूछा जा रहा है, राइट? ये अपने आप में कुछ खास अलग वेक्टर्स हैं जिनकी बात की गई है, करेक्ट? तो अब सबसे पहले सोचना है, क्या सोचना है कि P plus Q अपने आप में एक वेक्टर है और P cross P अपने आप में एक दूसरा वेक्टर है, राइट? करेक्ट? नाउ all we have to do is find out what is the angle between them। ठीक, अब याद करो हमने क्या पढ़ा है, रिमाइंडिंग यू ऑल कि हमने पढ़ा है, सपोज एक ये शीट है, देखना, ठीक है, ध्यान से एक बार देखो, राइट? कम जहां से भी आप हो वहां से वापस आ जाओ, सारे थॉट्स को ऑन द स्क्रीन, सारे थॉट्स से वापस आओ, कम ऑन द स्क्रीन। कहां पढ़ रहे हैं हम, क्या पढ़ रहे हैं, ध्यान दो कि हम लोग एक पेपर बना रहे हैं, इस पेपर के एज पर लेट अस टेक P and Q। सपोज दिस इज P and Q, suppose this one is P, right, and this one is Q, correct? अब P plus Q कहां की ओर होगा, याद करो, हमने पैरेललोग्राम लॉ से क्या पढ़ा है कि हम एक ऐसा पैरेललोग्राम बनाएंगे P और Q की मदद से, राइट? और उसका क्या बनाएंगे, डायगोनल, और वो डायगोनल क्या रिप्रेजेंट करता है, वो डायगोनल रिप्रेजेंट करता है रिजल्टेंट, जिसको हम कहते हैं P plus Q। याद आ रहा है? सो P plus Q, P plus Q is a vector, right, which lies on the same plane, lies on the same plane as P and Q। ये लिखो सभी लोग, P plus Q lies on the same plane as P and Q, लिख लो, राइट? इसका क्या मतलब है, जैसे अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक शीट है, ठीक है, एक शीट है ये, इस शीट पर P लाई कर रहा है, राइट, और इस शीट पर Q भी लाई कर रहा है, ठीक?
तो इसी शीट पर इनका रिजल्टेंट भी लाई कर रहा है, ये मीनिंग है। ठीक, अब अगली लाइन देखो, अगली लाइन क्या है। हाँ, अब हम बात करते हैं नए दूसरे वेक्टर की, यानी कि दिस वन, P क्रॉस Q। ये जो P क्रॉस Q है, इसके बारे में हम क्या जानते हैं? हमने लिखा था, याद करो, कि P क्रॉस Q इस डायरेक्शन में लाई करेगा, देखो ऐसा ऊपर की तरफ। क्यों? हमने राइट हैंड थंब रूल याद किया था। देखो, एक रूल होता है राइट हैंड रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि जब आपके पास किसी एक प्लेन पर दो वेक्टर्स हैं और आपको उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, तो क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन कैसे तय करते हो? जैसे फॉर एग्जांपल, ध्यान देना यहाँ पर स्क्रीन पे, आई विल स्विच ऑफ दिस, सो right, have a look at the screen. I have two pens, right? One is pink, the other is blue. अब suppose this blue one is P, right? This one is Q. तो हम क्या करेंगे? हमें जाना है P से Q. Have a look. P से Q, right? Blue से pink. तो I'll take my fingers, I'll curl them in the direction. कहां से देखो? From this blue one to the red one. देखो कैसा? P से Q की तरफ। देखो, अपने हाथ में एक पेन ले लो या अपने दो फिंगर्स ले लो, एक को P मानो, दूसरे को Q मानो, और ऐसे जाओ फ्रॉम वन फिंगर टू अनदर, राइट? फ्रॉम वन फिंगर टू अनदर। यहां पर आई हैव टेकन टू पेन्स, आई विल रिपीट, P Q। Go from, curl your fingers of the right hand, take your right hand, curl your fingers of the right hand from blue finger, from the blue pen to the red pen, to the pink pen। देखो ऐसा, थंब कहां पॉइंट कर रहा है? इन द अपर डायरेक्शन। तो अब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये थंब? ये थंब रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो P और Q का, P क्रॉस Q, तो वो कहां लाई करता है? इन द अपवर्ड डायरेक्शन। जबकि P और Q इस प्लेन पर लाई कर रहे हैं और उनका क्रॉस प्रोडक्ट कहां लाई कर रहा है? इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन, राइट? इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन। जबकि जबकि इन दोनों का रिजल्टेंट P प्लस Q यही लाई कर रहा है इन द सेम प्लेन एज P एंड Q। देखो, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ P एंड Q which is lying on the same plane. What does this mean? इसकी मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग है कि P और Q का रिजल्टेंट उस प्लेन पर है, जबकि उनका क्रॉस प्रोडक्ट उस प्लेन से परपेंडिकुलर है। इसका मतलब इनका रिजल्टेंट और इनका क्रॉस प्रोडक्ट एक दूसरे के कैसे हो गए? परपेंडिकुलर। ये बात क्लियर हो रही है सभी लोगों को? सबको क्लियर है ये जो मैंने अभी अभी समझाया? आई विल रीड्रॉ इट हियर, हैव अ लुक, ध्यान देना। हमारे पास देखो, वी हैव this P and Q lying on the sheet of the paper, whereas the cross product of both P and Q is perpendicular to the plane of the paper, right? To the plane of the paper. So this basically, this blue line is basically representing the direction of P cross Q, right? नाउ इज दिस टॉपिक क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या? सो अब हमारे केस में जब पूछा जा रहा है कि भाई बताइए व्हाट इज द एंगल बिटवीन P प्लस Q एंड P क्रॉस Q, राइट? P क्रॉस Q, तो आंसर क्या हो जाएगा? द आंसर विल बी 90 डिग्रीज, राइट? देखो, दिस दिस एंड दिस, ऑल थ्री आर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज। क्लियर हुआ क्या सबको किस तरह से? Is it clear? Anyone with any queries, please raise your hand. अच्छा, जिसको समझ में आ गया प्लीज रेज योर हैंड। हाँ चैतन्य बच्चा बोलो, पूछो पूछो चैतन्य। यस
सर जैसे कि आपने बताया था कि रिजल्टेंट जो है वो पी और क्यू के जो प्लेन में वो उसमें है, और जबकि उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो उनसे परपेंडिकुलर है। सर हम लोगों ने ये पढ़ा है कि जब अगर कोई जो तीन प्लेन है एक्स वाई जेड, वो तीनों अपने हिसाब से परपेंडिकुलर है, तो सर इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो जेड एक्सिस में लाई करेगा ना। देखो बच्चा, z x y ये हम डिसाइड करते हैं एज एज अ पर्सन हु इज सॉल्विंग द प्रॉब्लम, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्वर डिसाइड करता है कि आप अपने x y z एक्सिस कहाँ लेना चाहते हो, राइट? मैं कभी z को ऐसे ले सकता हूँ, कभी ऊपर ले सकता हूँ, कभी राइट ले सकता हूँ, मतलब अकॉर्डिंग टू माई कन्वीनियंस आई कैन रोटेट द XYZ एक्सिस अकॉर्डिंग टू माई कन्वीनियंस, ये याद रखो। तो अभी अगर तुम समझना चाहते हो कि x और y lie कर रहा है along the plane of paper, then absolutely correct, z will be perpendicular to them, that is along the direction of p cross q, बिल्कुल करेक्ट चैतन्य। लेकिन तब जब मैं ये मानूं कि x और y इस प्लेन के अलोंग है जहां पर p और q लाई कर रहे हैं। क्लियर बच्चा? यस सर, क्लियर। ओके, हाँ। I think Veeraj, Amish and Kartikeya was also want to ask something. We'll start from Amish. हाँ बच्चा, Amish बोलो। Okay, I think Shrish wants to ask something. हाँ Shrish बच्चा बोलो। पूछो Shrish बच्चा। Yes. Anything you want to ask? Okay, No, sir, no doubt. okay, okay. ठीक है, right. अच्छा, सबको क्लियर हो गया? Everyone? चैतन्य क्लियर हो गया ना आपको? Everyone क्लियर है, right? ठीक है, right, right. ओके, राइट। ये नोट कर लिया सबने अपने पास? रिटन इट डाउन अलोंग विथ यू। माहिवेश बच्चा, आपको क्लियर हो रहा है? ठीक है। कुशल क्लियर हो रहा है कि बच्चा आपने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है पहले? कुशल, हैव यू रेड दिस बिफोर लाइक? ओके, ओके। तो कुशल क्लियर हुआ क्या जो अभी हमने एक्सप्लेनेशन दिया? इज इट क्लियर, क्रिस्टल क्लियर टू यू बच्चा? ठीक है, राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, ठीक है। So I'll rub the screen then. Let's move to the next one. आपके पास अगला क्वेश्चन था। The next question was, the question was कि you have a unit vector given by, a unit vector is given by 0.5 I cap plus 0.8 J cap plus C K cap, right? ठीक है। अब हमें कहा गया था कि इस तरह से दिया गया है, फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी। सी पूछा जा रहा है, करेक्ट? ओके, कोई है जो इस क्वेश्चन को टैकल करना चाहेगा, बताना चाहेगा सबको कि ये कैसे सॉल्व होगा? एनी वन ऑफ यू just raise your hand if anyone wants to answer this question, ये कैसे होगा? Raise your hand. Okay, I think Amish, Kushal and Mahivesh have raised their hands. Okay, uh, right, Mahivesh। हाँ Mahivesh बच्चा बोलो, अप्रोच बताना, ठीक है? Sir, as we know that this unit vector's magnitude will also be 1, so we'll apply the formula for finding the magnitude. So we will write it as under root of 0.5 square plus 0.8 square plus c square, which will be equals to 1, and then square both of the sides to remove the under root, and then correct बच्चा। find that it will be c square plus 0.89 equals to 1, Correct. and then we'll shift 0.89 to the other side, and then we'll get answer of c equals to under root 0.11. ठीक है बच्चा, ठीक है, all right, ठीक है, right. So I think who all had raised hands? It were, I think Kushal had raised hand, Rahul,
आई थिंक चैतन्य had raised hand, कार्तिकेय, ठीक है, राइट, सबको क्लियर है। देखो अभी अभी माहिवेश ने जो बात कही, आप लोग हैंड डाउन कर सकते हैं, थैंक यू एवरीवन, राइट। सो देखो क्या दिया गया है क्वेश्चन में कि एक यूनिट वेक्टर है, राइट, जिसके लिए एक्स वाई जेड की वैल्यू दी हुई है। हम लोग क्या जानते हैं, अगर कोई भी एक यूनिट वेक्टर है, सपोज एन कैप, व्हाट डू वी नो अबाउट एन कैप? वी नो दैट एन कैप का मैग्नीट्यूड कैसा होना चाहिए, 1, तभी उसको हम क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर। यूनिट शब्द का मतलब क्या होता है, 1, राइट। सो हम जानते हैं अगर किसी वेक्टर को मैं रिप्रेजेंट करता हूं इस तरह से, आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप, right? Then I have magnitude of r is given as rx square plus ry square plus rz square, right? और हमारे केस में मैग्नीट्यूड कितना है, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है इसलिए मैग्नीट्यूड है 1, और rx ry rz यानी कि x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट की वैल्यूज क्या दी हुई हैं, हैव अ लुक, 0.5 स्क्वायर प्लस 0.8 स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, करेक्ट। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर लोगे, यू विल हैव 1 इज इक्वल टू 0.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0.25, राइट, प्लस 0.64, राइट, प्लस c स्क्वायर, करेक्ट। तो क्या हो जाएगा, c स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 0.89, राइट। So I think this will yield 0.11 and c will be under root of the same value. Clear हो रहा है क्या सबको ये? Everyone लिख लीजिए अपने पास, write down this answer. Everyone clear? बच्चा लोग ठीक है, राइट, ठीक है। सो लिख लीजिए एवरीवन, जैसे ही सब लोग लिख लेंगे तो हैंड रेज करिए, ठीक है। एज सुन एज यू हैव रिटन दिस क्वेश्चन डाउन, दिस आंसर विथ यू, रेज योर हैंड्स, सॉरी, yes, please raise your hand as soon as you have written this question. Everyone will raise their hands as soon as they're done writing the question. ओके, राहुल बच्चा आपने लिख लिया, ठीक है, राहुल इज ऑल्सो डन। चैतन्य, आर यू डन बच्चा? जो लिख लीजिए, लिख लें क्वेश्चन, प्लीज रेज योर हैंड बच्चा लोग, जैसे ही सोल्यूशन हो जाए प्लीज रेज योर हैंड। ओके, सो राहुल इज ऑल्सो डन। चैतन्य बच्चा लिख लो। श्रीश हो गया क्या? कीप योर हैंड रेज्ड, आई जस्ट वांट टू हैव अ चेक इफ यू आर डन राइटिंग। सभी लोग अपना हैंड रेज्ड रखिए as soon as you are done writing the question. I think Mahivesh, Kushal, Rahul, Amish, Rahul, Chaitanya, Shrish, Veeraj, ठीक है, all are done. So I'll rub the question then. Sir, हाँ, somebody wants to say something, बोलो। हाँ, आप लोग हैंड डाउन कर सकते हैं बच्चा लोग, ठीक है। Anybody wants to say something? yes sir. हाँ हाँ, बोलो बोलो बच्चा। सर पिछले क्वेश्चन में हमने किया उसका आंसर 90 डिग्री आया। पिछले क्वेश्चन में आपने किया उसका आंसर 90 डिग्री आया, हाँ तो हाँ। सर उसको π/2 क्यों रिप्रेजेंट की? उसके बारे में जवाब विल कम व्हेन यू अंडरस्टैंड व्हाट इज रेडियंस। जानते हो क्या बच्चा अभी? डू यू नो व्हाट इज रेडियंस? लिटिल बिट, नॉट मच। हाँ, तो उसके बारे में वील बी डिस्कसिंग। इसके बाद जस्ट द नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करेंगे ना, आई विल रिपीट आप सबके लिए व्हाट इज, सो दिस क्वेश्चन वाज बाय
सर कार्तिकेय। कार्तिकेय, ठीक है। सो कार्तिकेय आस्क्ड कि सर इसके पहले के क्वेश्चन में आंसर गिवन इन द बुक इज पाई बाय 2, व्हाई इज इट गिवन, राइट? व्हाई इज इट गिवन? पाई की वैल्यू 180 है इसलिए। हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे बच्चा। वी विल बी डिस्कसिंग व्हाट इज रेडियंस, राइट? ओनली व्हेन ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज रेडियंस देन वी विल कंसीडर दिस, ठीक है? यस सर। ऑलराइट। हाँ चैतन्य, डू यू वांट टू से समथिंग बच्चा? ओके, ठीक है। सो लेट अस सी द नेक्स्ट वन। आपके पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन दिया हुआ है कि यू हैव टू वेक्टर्स। पहला है वेक्टर ए which is given as a1 I cap plus b1 j cap. Then you have another vector which is given as vector b which is a2 I cap plus b2 j cap. ठीक, अब हमें कहा जा रहा है क्वेश्चन में write down the condition that the two vectors are perpendicular to each other. क्या पूछा है क्वेश्चन? Write down the condition that the two vectors are perpendicular to each other. हाँ भाई, हैंड रेस करो, कौन कौन इस क्वेश्चन की गुत्थी सुलझा सकता है? For the two vectors to be perpendicular to each other, what is the condition? Anyone? हमको निकालना है what is the condition. मुझे अप्रोच सुननी है, राइट? आंसर से पहले we'll see the approach. Hand raise करो if you want to try this out. Approach. आंसर गलत भी हो कोई बात नहीं. I want to see the approach. Yes. So, okay. Yes, Kushal. बोलो बच्चा. Their dot product should be 0. Dot product should be 0. Absolutely correct, right? तो हम लोगों ने क्या देखा है इसके पहले? We have heard कि whenever two vectors are perpendicular, dot product कैसा हो जाएगा? AB cos of 90, right? That will give you 0, and therefore you have dot product कैसे निकालते हैं? क्लास याद करो, x और x, y और y component को you multiply and you add them up. That is, you have a1 a2, right, plus b1 b2, giving you a 0, and therefore this will be the condition for the question. तो आप कैसे लिखोगे इसको? You will write this down as a1 a2 is equal to minus b1 b2, करेक्ट? ये प्लस साइन वहां जाकर नेगेटिव। देन क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया है, क्वेश्चन में एक रेशियो के फॉर्म में आंसर दिया है। सो सी, कैन यू मेक अ रेशियो आउट ऑफ दिस? यू कैन। देखो, a1 अपॉन b1, राइट, दिस इक्वल्स टू a1 upon b1 equals to b2 upon a2 with a minus sign here, right? So this is your answer. I think this was given as option number A. Clear है सबको? It was an easy question. Just जिसको clear है, please raise your hand. Everyone, everybody who is clear, please raise your hand so that I can have a count. Those who are clear, please raise your hand. ठीक है, all right, ठीक है. So we'll move to the next question then. सबने नोट कर लिया है? Written it down, right? ठीक है. Let's see the next one. आपके पास अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 86. It was asking you कि भाई we have two vectors given, A and B. Vector A given as 2i cap plus 2j cap. आप लोग वापस हैंड डाउन कर सकते हैं, ठीक है? 2i cap plus 2j cap minus xk cap, correct? And then you have vector B given as 2i cap, right, minus j cap minus 3k cap, ठीक है? It is given that these two have to be again perpendicular to each other. फिर से x find करना है. Again the approach will remain the same. क्या करना है? A और B को एक दूसरे के perpendicular रखना है. तो in that case what will be the value of x? तो हम क्या करने वाले हैं? We know dot product कैसा हो जाता है? 0.
whenever two vectors are perpendicular to each other. डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? अगेन यू हैव दोनों का प्रोडक्ट निकालो, प्रोडक्ट निकालो, प्रोडक्ट निकालो और ऐड करो. सो यू हैव 4 minus 2, right, plus 3x is equal to 0. Therefore you have 3x, right, यहाँ पर आ रहा है आपके पास plus 2 is equal to 0. Therefore you have x is equal to minus 2 upon 3. minus 2 upon 3. क्लियर है ये सभी को? तो चलो, एवरीबॉडी क्लियर? जो क्लियर है प्लीज रेज योर हैंड सो दैट आई विल हैव अ काउंट. और किसी को नहीं हुआ है तो अपना माइक अनम्यूट करके डाउट पूछ लो. यस, जिनको क्लियर है प्लीज रेज योर हैंड. यस, जिनको क्लियर है प्लीज रेज योर हैंड. यस, ओके. चैतन्य आपको कुछ पूछना है क्या बच्चा? पूछ लो. यस, यस चैतन्य. ओके, ओके. हाँ चैतन्य, डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग बच्चा? सर नथिंग. ओके, ठीक है. ऑल राइट, ठीक है. सबने नोट कर लिया, राइट? नो सर, नो सर, प्लीज वेट फॉर 2 ओके, मिनट. ठीक है. लिख लो, सभी लोग लिख लो. जैसे ही सब लोग लिख लेते हैं ना तो अपने हैंड डाउन कर लो, सो दैट विल बी अ सिग्नल कि आपने लिख लिया है. ठीक है. हैंड को तब तक रेज्ड रहने दो जब तक आपने नहीं लिखा है. जैसे ही लिख लो तो हैंड डाउन कर लो. ठीक है. डन एवरीवन? ठीक है. लेट्स मूव अहेड. ओके, सो आपके पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 87 है ना. क्वेश्चन आपसे कहता है कि a and b are two vectors given as a vector is equal to 2i cap, right, plus 3j cap, correct, and vector b is given as i cap plus j cap, right. क्वेश्चन में कहा जा रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ a along b, कंपोनेंट ऑफ a along b. ये हमने क्लास में किया है, राइट क्लास? याद करो, वी हैव रिटन दिस डाउन. क्लास में हमने इसको कैसे देखा था? अगर ये a है, राइट, whereas this is vector b, और मुझे a का कंपोनेंट b के अलोंग निकालना है, तो इस क्वेश्चन का जवाब कौन कौन दे सकता है? रेज योर हैंड. यस, रेज योर हैंड. यस, वीरज. हाँ वीरज बोलो. तो अपन लास्ट क्लास में पढ़ते हैं, अगर अपन को ए का कंपोनेंट निकालना है अलोंग बी, तो हमारे पास एक फॉर्मूला था. जब ए और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो अपन को वैल्यू मिलती है ए बी कॉस थीटा. तो सर अभी इसमें ए बी कॉस थीटा में अपन बस जो ए का है मैग्नीट्यूड वेक्टर का, उसको इक्वल टू के दूसरे साइड भेज देंगे तो डिवाइड हो जाएगा. राइट. और यहाँ पर कैसे रिप्रेजेंट करोगे? देखो, कंपोनेंट ऑफ ए, ये है ए, देखो ये है ए. एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चा. देखो ये है कंपोनेंट, ये ए है, इसका कंपोनेंट निकालना है अलोंग बी, राइट. इसका कंपोनेंट कहाँ निकालना है? अलोंग बी. तो कैसे निकालेंगे इसको? दिस विल बी ए कॉस थीटा. ये क्लियर है क्या सबको? ए का कंपोनेंट निकालना है किसके अलोंग?
बी के अलॉन्ग, तो क्या हो जाएगा a cos थीटा। और हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हमको ऑलरेडी पता है, वी नो दैट a डॉट b इज गिवन एज ab cos थीटा, राइट। और हमारा आंसर जो हमको चाहिए कंपोनेंट ऑफ a along b दैट इज इक्वल टू a cos थीटा। अब यहां से a cos थीटा निकल सकता है क्या? बिल्कुल निकल सकता है। देखो a cos थीटा फ्रॉम दिस इक्वेशन इज इक्वल टू a डॉट b अपॉन b। सिंपल है ये। वीरज क्लियर हुआ क्या बच्चा? ये क्लियर हुआ सबको, एवरीवन, कि हमने क्या किया? अभी तक हम लोग क्या पढ़ते थे? कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर अलोंग एक्स एंड अलोंग वाई एक्सिस। अब हम क्या देख रहे हैं? तो याद करो, हमने जो सम लिया था वहां पर हमने बी का कंपोनेंट देखा था। जब हमने सम लिया था लास्ट टाइम तो हमने बी का कंपोनेंट देखा था। देखो ये है वेक्टर बी और ये है वेक्टर ए, ऐसा। तो हमने कहा था बी का कंपोनेंट अलोंग ए कितना हो जाता है? बी cos थीटा, राइट। और उसका डायरेक्शन क्या होता है? ए के अलोंग है, इसलिए हमने डायरेक्शन क्या लिया था? ए कैप, राइट। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पर हमको ए का कंपोनेंट लेना है। किसके अलोंग लेना है? बी के अलोंग लेना है। सो वी विल राइट दैट अगर ये एंगल थीटा है, so this component of A along B is equal to A cos theta. ये बात क्लियर है क्या सबको? इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? बच्चा लोग क्लियर है ये कि A का कंपोनेंट along B is equal to A cos theta। अब A cos थीटा की वैल्यू देखो हमने यहां से निकाली है A डॉट बी अपॉन बी, राइट। और A डॉट बी की वैल्यू क्या होगी? देखो A यहाँ पर दोनों का कंपोनेंट आपको पता है, यहाँ पे देखो, हैव अ लुक हियर। देखो A की वैल्यू आपको पता है, B की वैल्यू भी आपको पता है, राइट। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालो। वीरज बताओ डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? तो उसका डॉट प्रोडक्ट आता है 5। 2 इंटू 1, राइट। दोनों का x मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 1, राइट। फिर दोनों का क्या मल्टीप्लाई करो? y। तो कैसा हो जाएगा? 3 इंटू 1। एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चा, 5। अच्छा b कैसे निकालोगे? b का मैग्नीट्यूड माहिवेश, अच्छा माहिवेश हैज गिवन द आंसर। आज who has not spoken? anybody? श्रीश, श्रीश बच्चा आप बोलो, b की वैल्यू कैसे निकालोगे? यहाँ से b का वैल्यू निकाल सकते हो क्या? मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो b का? बोलो क्या आ जाएगा? हाँ बोलो सर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट में रहेगा। करेक्ट। क्या आएगा आंसर? बोलो। सर अंडर 1 रूट ऑफ 2 रूट 2 सॉरी रूट ऑफ 2। देखो रूट ऑफ 2, हाँ या ना। 1 स्क्वायर कितना होता है? 1, 2, 1, फिर से 1 स्क्वायर कितना होता है? 1, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2, हाँ या ना। यस सर। क्लियर है सबको? तो b का मैग्नीट्यूड कितना आ गया? 2 अंडर रूट, राइट। सो आपके पास आंसर आया 5/2 के ऊपर रूट। दिस इज द वैल्यू ऑफ, ये किसकी वैल्यू आ रही है? देखो गौर करो, दिस इज द वैल्यू ऑफ a cos थीटा। यानी कि आपके पास जो यहां भी निकल के आया है, दिस इज नथिंग बट वैल्यू ऑफ a cos थीटा। और a cos थीटा क्या है? a cos थीटा was nothing but the component of a along b, component of a along b। मुझे बताओ ये जिस जिसको क्लियर है प्लीज रेज योर हैंड। जिस जिसको क्लियर है ये कॉन्सेप्ट, रेज योर हैंड। ये वही है जो हमने क्लास में पढ़ा था, नथिंग डिफरेंट। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं दोबारा समझाऊं सो आई कैन अगेन एक्सप्लेन इट, बट अगर क्लियर हो गया तो प्लीज रेज योर हैंड। यस यस बच्चा लोग, अगर क्लियर हो गया तो प्लीज रेज योर हैंड। हाँ कुशल कुछ पूछना है बच्चा, बोलो। सर कंपोनेंट मतलब क्या होता है? कंपोनेंट का मतलब होता है, जैसे अब मैं फॉर एग्जांपल, अभी हमने जो पहला क्वेश्चन किया था ना, जैसे लेट मी टेक, यहाँ पर सपोज ये एक वेक्टर है r, राइट। ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस। तो कंपोनेंट शब्द comes from, just a minute,
तो अब जैसे मैं एक पॉइंट बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, सपोज यहाँ एक पॉइंट है कुशल, लेट्स टेक 5,6, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर किसी भी एक्स वाई प्लेन में मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ, लेट अस नेम दिस पॉइंट एज पी। तो मुझे एक बात बताओ कुशल, अगर मैं ये डिस्टेंस मेजर करना चाहूँ अलोंग द एक्स एक्सिस, ये पॉइंट ओरिजिन से कितना दूर है, ये ओरिजिन हुआ राइट, अलोंग द एक्स एक्सिस ये पॉइंट ओरिजिन से कितना दूर है, मतलब ये डिस्टेंस कितना होगा बताओ। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। नहीं, यहां से तो और डायरेक्टली देख सकते हो, देखो अगर यहाँ 5 लिखा है तो 5 का क्या मतलब हो जाएगा बोलो, दिस इज इक्वल टू 5 5 राइट, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी ये वाले डिस्टेंस की, इसका मतलब पॉइंट 6 पी ओरिजिन से वाई एक्सिस के अलोंग कितना दूर है, कुशल बच्चा बोलो। 6 6। 6 तो यूनिट्स। एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये 5 will be called as x component, whereas this 6 will be called as y component. क्लियर हो रहा है? कंपोनेंट का मतलब, कंपोनेंट का मतलब यही होता है कि कोई एक चीज के अलग अलग पार्ट है। नॉर्मली इंग्लिश में सोचो, कंपोनेंट मतलब जैसे आपकी एक गाड़ी है राइट, या एक टेलीविजन है, तो टेलीविजन को अलग अलग हिस्सों में तोड़ दो राइट। फॉर एग्जाम्पल यू हैव डिफरेंट parts of a television, right? You may have first a screen, right? Inside it you may have some kind of projector जिससे सामने स्क्रीन पे सब प्रोजेक्ट हो रहा है, पीछे के तरफ you might be having a wire जो यहाँ से इसको मेन स्विच में कनेक्ट कर रही है, करेक्ट। उसके बाद यहाँ पर हो सकता है टेलीविजन में एक स्टैंड लगा होगा, यहाँ पर एक पावर बटन होगा राइट, यहाँ पर एक वॉल्यूम बटन होगा। तो ये सब क्या है, ये सब इसके कंपोनेंट हैं। क्लियर हो रहा है क्या? तो कंपोनेंट का बेसिक एजेंडा क्या है, ये समझाना कि कोई एक बड़ा सा सिस्टम कौन कौन सी छोटी चीजों से मिलकर बना है। तो अगर मैं बात करता हूं वेक्टर की, अगर मैं बात कर रहा हूं किसी एक वेक्टर की राइट, जैसे सपोज वेक्टर आर है, तो अगर मैं इसको लिखता हूं 5i कैप प्लस 6j कैप, तो इसका मतलब है 5i कैप प्लस 6j कैप का मतलब है कि 5 इज नथिंग बट इसका एक कंपोनेंट है ये राइट, और ये 6 इसका दूसरा कंपोनेंट है। तो वो कंपोनेंट जो x डायरेक्शन में है मैं उसको नाम दे रहा हूं x कंपोनेंट, और वो कंपोनेंट जो y डायरेक्शन में है मैं उसको नाम दे रहा हूं y कंपोनेंट। क्लियर है क्या कुशल बच्चा? ये यस सर। अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है, कंपोनेंट क्या होता है, यस सर। राइट। ठीक है, ठीक है। बाकी सबको जिन जिनको क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट जो हमने अभी सम डिस्कस किया है, प्लीज रेज योर हैंड सो दैट आई विल हैव अ नॉलेज कि आप सबको क्लियर हो गया है। जस्ट रेज योर हैंड बच्चा लोग, एवरीवन। यस, क्विकली। डाउट, हाँ अमीश बच्चा बोलो। यहाँ पे डायरेक्शन मेंशन करना जरूरी नहीं है क्या? जैसे डी कैप के अलावा याद करो, याद करो मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि आपके पास कंपोनेंट वाले क्वेश्चंस में दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक, आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा जाता है, और दूसरा क्या होता है कि आपको वेक्टर पूछ लिया जाता है। तो अगर यहाँ पर आपके पास ऑप्शन वेक्टर के फॉर्म में होते, देखो आपके पास जो क्वेश्चन थे, ऑप्शन थे वो थे 5/√2, 7/√2, 3/√2 एंड 5/√13। तो मतलब जो भी वैल्यूज थी वो कैसी थी अमीश, स्केलर या वेक्टर? स्केलर स्केलर। ओनली। हाँ, इसीलिए मैंने आंसर किस में लिखा है यहाँ पर, स्केलर में। क्लियर है क्या यस बच्चा? स्केलर। ओके। क्लियर है कि यस डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास ऑप्शंस कैसे दिए हैं, यू विल चूज कि आपको सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड बताना है कि उसका डायरेक्शन भी बताना है। डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन वेक्टर कैसा होगा, बी कैप, हाँ या ना, क्योंकि ए यस कॉस थीटा किस डायरेक्शन में है, बी के डायरेक्शन में है। और बी कैप कैसे निकालते हैं, वेक्टर बी अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। याद आ रहा है ये अमीश बच्चा? यस क्लियर। क्लियर है? अच्छा, यस सर। ओके ओके। तो आई थिंक एवरीबडी हैज रेज्ड हैंड। जैसे ही आप लिख लो इस क्वेश्चन को राइट, यू कैन ब्रिंग डाउन योर हैंड। लिख लो जैसे, यू कैन ब्रिंग डाउन योर हैंड। जो भी स्क्रीन पे लिखा है, इफ यू हैव नोटेड इट डाउन यू कैन ब्रिंग योर हैंड डाउन, राइट।
जैसे जो भी आपने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, जैसे आपने उसको नोट डाउन कर लिया, तो कैन ब्रिंग योर हैंड डाउन, राइट? ठीक है, राइट। So I think all are done. Everybody has raised their hand down. ठीक है, okay, right बच्चा लोग। तो I think now आप लोगों के लिए हमने 87 तक डिस्कस किया। देयर आर 3 क्वेश्चंस, 88, 89 एंड 90, राइट? तो इनके लिए वील कंटिन्यू द डिस्कशन अगली क्लास में, राइट? प्लस बिफोर द नेक्स्ट क्लास आप लोगों से मैं जानना चाहूंगा कि किस किस ने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, अटेम्प्ट किए हैं, राइट, टुमारो, यानी कि आपके पास आज का पूरा दिन है, राइट? मैंने ग्रुप पे आप लोगों के लिए डीसी पांडे डाली हुई है, राइट, लेवल 1, राइट, लेवल 1 आपके लिए उस पे क्वेश्चंस डाले हुए हैं। सो कल सब लोग डीसी पांडे में क्वेश्चन नंबर 90 से क्वेश्चन नंबर 106 लेवल 1 को फिनिश करेंगे, राइट? राइट, I'll repeat here, I'll write it down. DCP, that is DC Pandey, you will be taking vectors. और देखो मैंने आज कैसे आप लोगों के लिए टेस्ट के फॉर्म में लिया, राइट? ऐसे ही अपने आप का टेस्ट लेना है, मतलब जब भी आप पढ़ाई करने बैठ रहे हो यू शुड ऑलवेज पुट योर टाइमर ऑन, मतलब अपने टाइमर को ऑन करो एंड देन स्टार्ट स्टडिंग। फॉर एग्जांपल इफ दिस इज योर फोन, अपने फोन पर यू नो हाउ टू सेट द टाइमर, राइट? अपने पास टाइमर सेट कीजिए, यू ऑल नो, राइट? यू ऑल हैव द टाइमर, तो टाइमर सेट करेंगे सब लोग एंड देन यू विल स्टार्ट स्टडिंग, ठीक है? तो अब जैसे वेक्टर्स के लिए यू विल हैव लेवल 1 में क्वेश्चन नंबर 90 से लेकर क्वेश्चन नंबर 106, राइट? दिस इज लेवल 1, ओके? देन आपके पास आई विल आल्सो अपलोड लेवल 2 आज ही ग्रुप पर, आई विल अपलोड लेवल 2, राइट? अगर आपने अभी बुक नहीं खरीदी है तो लेवल 1 लेवल 2 में क्वेश्चन नंबर 1 to 27, 1 to 27, ठीक है? अच्छा, जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हु आर अपीयरिंग फॉर देयर नीट एग्जामिनेशन, they also have to solve the assertion and reason part, right? Assertion and reason part, right? And I'll also upload that same today itself. Assertion, apart from the above, assertion and reason part has to be solved by the candidates who are also preparing for NEET examination. Plus जो JEE की तैयारी कर रहे हैं वो तो solve करेंगे ही, but at the same time you also have to tackle this entire part, ठीक है? राइट, और आप मुझे कल सुबह कल का पूरा दिन ले लीजिए, इवनिंग में, कल रात को 9 बजे से पहले, सो आई एम गिविंग योर टाइम, आज है 25, तो 26 को 26 जून राइट 9 PM से पहले आप लोग मुझे ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, राइट? राइट, और बताइए यू आर डन, राइट? उसके बाद we'll be taking a session जहां पर हम सिर्फ डाउट्स का डिस्कशन करेंगे, आपके जो भी क्वेरीज हैं हम उनको एक एक करके सॉल्व करेंगे। क्लियर है क्या एवरीवन? मैंने अभी क्या कहा कि आपको 26 जून रात को 9 बजे तक जो भी अभी मैंने आपको असाइनमेंट दिया है इसको फिनिश करना है। जरूरी नहीं है कि आपसे हर क्वेश्चन बने। अच्छा, वन मोर थिंग, जैसा मैंने आपको कहा, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज आल्सो इन योर प्लेस, जहां पे अभी आप हैं, राइट? ऐसा होगा, राइट, कि आपसे कुछ क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। जब नहीं बनते हैं तो घबरा मत जाना कि अरे अरे मुझसे नहीं बन रहा। अच्छी बात है कि नहीं बन रहा, बिकॉज अब जब उसको समझोगे और सीखोगे तो नेक्स्ट टाइम में बन जाएगा, राइट? तो पहली बार क्वेश्चन का न बनना इज गुड, जैसे क्वेश्चन का बनना इज गुड, क्वेश्चन का न बनना इज ऑल्सो गुड, राइट? राइट, ताकि जब आप उसको डाउट क्लास में मुझसे पूछोगे कि सर ये क्वेश्चन कैसे बन रहा है, तो चीजें क्विकली समझ में आने लगेगी। क्लियर है क्या क्लास एवरीवन? राइट, और सबको डाउट क्लास में आना है, राइट? इट इज कंपल्सरी फॉर एवरीवन टू अटेंड द डाउट क्लास। डाउट इनफैक्ट इट विल बी अ क्लैरिटी क्लास, जहां पे आप अपने जो क्वेश्चंस नहीं बने उनको पूछ सकते हो। अब तक आपने जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं लेवल 1 में, लेवल 2 में, असर्शन एंड रीजन, एवरीथिंग हम सब उन क्लैरिटी क्लासेस में डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके, अब एनीबॉडी एनी डाउट प्लीज रेज योर हैंड एंड आस्क।
यस यस अमीश बच्चा बोलो। यहाँ पे सर जो एचसी वर्मा का सर जो बुक है उसमें एग्जाम्पल 2.1 सर पेज नंबर 13 में जो सॉल्यूशन दिया है सर वहां पे वो सॉल्यूशन कैसे हुआ करके उसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। ठीक है, तो हम ये सारे क्वेश्चंस जो आप लोगों को डाउट्स है ना, इन सबको एक क्लैरिटी क्लास लेंगे, राइट। वील कीप टेकिंग क्लैरिटी क्लासेस और उसमें हम इन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है, राइट। ओके सर। ओके, हाँ कार्तिकेय बच्चा बोलो। अपने सारे क्वेश्चंस को एक पेज पर कलेक्ट करके रखो, जो जो आपको पूछने हैं, राइट। सारे क्वेश्चंस को एक पेज पर कलेक्ट करके रखो। सो आपका होमवर्क क्या है, ये सब कुछ जो आपको दिया गया है, दिस प्लस जो आपके पुराने असाइनमेंट्स थे, जो आपको पहले असाइनमेंट्स दिए गए थे, वो सभी अपने पास कलेक्ट करके रखिए, राइट। एंड ऑल टुगेदर ये सब कुछ एक साथ हम लोग क्लैरिटी क्लास में कंसिडर करेंगे, राइट। एंड ऑल्सो मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चंस यू हैव, राइट। मेक अ लिस्ट ऑफ all the questions you have. हाँ कार्तिकेय बच्चा बोलो। When will be next class? हाँ कार्तिकेय पूछो पूछो बच्चा। The next class. हाँ क्वेश्चन क्या है बच्चा बोलो। Sir, when will be next class? I am अच्छा asking. हाँ, तो हमारी ओके राइट, तो आप लोगों के लिए जैसा अभी हम लोग नेक्स्ट आप लोगों के क्लासेस का टाइमिंग, क्योंकि शेड्यूल अलग हो रहा है, आप लोग के स्कूल खुल रहे हैं, so all we have decided कि we'll shift your classes in this afternoon slot, यानी कि TTS, that is Tuesday, Thursday and Saturday, right? TTS में हम आ जाएंगे from 1 to 2:30, right? और इसी के साथ we'll go ahead, right? ठीक है बच्चे लोग, everyone, any other query, anyone? So today we have Thursday, right? So next class will be, your next regular class will be on Saturday, ठीक है, next regular class is on Saturday। और कल इसी टाइम पे यानी कि फ्राइडे को ही आप लोगों को जो डाउट्स हैं, राइट, वो हम क्लियर करते हैं। At the same time tomorrow, that is Friday, let's meet for a clarity class, right, जिसमें हम लोग आप लोगों के डाउट्स क्लियर करेंगे, जो भी क्वेश्चंस हैं जो आप नहीं बना पाए हो, आप पूछना चाहते हो, कल इस टाइम पर वो ले लेते हैं। क्लियर है क्या बच्चे लोग? क्लियर है? लेकिन आपको क्या इंश्योर करना है कि क्लास के 1 घंटे पहले आप कम से कम अपने सारे क्वेश्चंस का फोटो लोगे और उसको ग्रुप पर अपलोड कर दोगे। एवरीवन क्लियर है सभी लोग इस बात से कि आप लोगों को, all of you have to do one thing, that before the next class, that is आप लोगों की अगली क्लास कब है, I'll repeat once again the instructions। ये लिख लिया सबने? पहले लिख लो एवरीथिंग ऑन द बोर्ड, जो भी लिखा है लिख लो अपने पास, एवरीवन रिटन इट डाउन। ठीक है बच्चा लोग, सबने लिख लिया है जो भी लिखा है स्क्रीन पर? Yes, sir. ओके ठीक है, राइट। सो आई रिपीट माय इंस्ट्रक्शंस। हमने क्या कहा है आप लोगों के लिए, ये जो आज हमने असाइनमेंट दिया, राइट, और जितने भी पिछले असाइनमेंट्स हैं, ये सारे असाइनमेंट्स हम कल इस तरह से क्लैरिटी क्लासेस लेंगे हर कुछ कुछ समय में। जैसे आपकी अगली क्लैरिटी क्लास, लेट अस कीप इट टुमारो फ्रॉम 1 to 2:30 PM, राइट। इसमें हम कोई नया टॉपिक शुरू नहीं करेंगे, इसमें हम जो अभी तक हमने किया है उसका रिवीजन करेंगे, या उसी टॉपिक को जो भी आपकी क्वेरीज हैं, चाहे वो HC वर्मा से हो, राइट, या फिर DC पांडे से हो, आप उसको यहाँ पर पूछेंगे, ठीक है। बट 1 घंटा पहले, एटलीस्ट 1 hour बिफोर, आपको वो सारे क्वेश्चंस जो आप पूछना चाहते हो ग्रुप पर अपलोड करने हैं, ठीक है। और एक साथ में देर आर डिफरेंट एप्स अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, जैसे डॉक्यूमेंट स्कैनर, नोट ब्लॉक एक्सेट्रा, राइट।
तो आप लोग चाहो तो मेक अ पीडीएफ ऑफ ऑल योर क्वेश्चंस एक साथ में, अलग अलग नहीं, एक साथ में सारे पीडीएफ का क्वेश्चंस अपलोड करो, राइट, बाय टुमारो आफ्टरनून में। सो 1 बजे क्लास है तो 12 PM पर आप अपने सारे क्वेश्चंस अपलोड कर दीजिए, ठीक है। आपकी रेगुलर क्लास का आज से टाइमिंग हम चेंज कर रहे हैं एंड मेकिंग इट ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे फ्रॉम 1 to 2:30। क्लियर है एवरीवन? एनीथिंग, एनी अदर क्वेरी बच्चा लोग? एनी अदर क्वेरी पूछ लो if there is anything you want to ask. So your doubt discussion will be done in the clarity classes और हम regular class के साथ continue करेंगे from Saturday onwards, right? All right, ठीक है। Any other query? हाँ बच्चा लोग बोलो बोलो बोलो। सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना है क्या? प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करेंगे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करेंगे, लेकिन फॉर द चैप्टर वेक्टर्स मैंने जानबूझ के नहीं कहा है, बिकॉज चैप्टर वेक्टर्स का एप्लीकेशन है बहुत सारे नए चैप्टर्स में, तो इनके क्वेश्चंस अभी मत करो, पहले वो चैप्टर्स हम कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको खुद ही कहूंगा कि बच्चा वेक्टर्स के पास्ट ईयर क्वेश्चंस बनाओ, ठीक है? क्लियर है क्या बच्चा? ओके, ठीक है। ऑल राइट क्लास, देन आप लोगों का अगला क्लास दैट इज क्लैरिटी क्लास, नॉट रेगुलर क्लास, इट विल बी अ क्लैरिटी क्लास टुमारो फ्रॉम 1 to 2:30। ये क्लास जैसे ही आपके डाउट्स खत्म होंगे ना तो आप लोग जा सकते हो, मतलब अगर 2 बजे खत्म हो जाते हैं यू कैन लीव एट 2, अगर 1:30 पे खत्म हो जाते हैं तो यू कैन लीव एट 1:30, ठीक है? सो इट इज अ क्लास जिसमें आपको तब तक रुकना है जब तक सबके डाउट्स क्लियर नहीं हो जाते, जैसे ही सबके डाउट्स क्लियर देन यू आर फ्री टू लीव, राइट? सो इट विल बी टुमारो फ्रॉम 1 to 2:30, ठीक है? और क्लैरिटी क्लास का टाइम हम बदलते रहेंगे डिपेंडिंग अपॉन कि आप लोगों का लाइक कब डाउट्स आते हैं, उसके अकॉर्डिंग हर चैप्टर के एंड में हम लोग क्लैरिटी क्लासेस रखेंगे मोस्टली, ठीक है? ओके, all right class, then let us log off, right? I'll log off then. Anything anybody has to say, कुछ share करना है anyone? बच्चा लोग anything you want to share? ठीक है, all right then I'll log off. Thank you everyone, thank you for attending. Let us meet on Saturday at 1 o'clock and continue this class, right? Okay बच्चा लोग, ठीक है, good day बच्चा लोग।